Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namo Vishnu Padaya Krishna Krishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Asya Deshatarine Namaste Saraswati Deve Ani Pracharini Nirvishesha Sunyavadi Asya Deshata Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath, Jai Jagannath Swami, Jai Jagannath. Jagannath Swami Nayana Padagami, Nayana Padagami Bhavatu me. Jagannath Swami Nayana Padagami, Nayana Padagami Bhavatu me. Jaya Jagannath Swami, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath Swami, Jaya Jagannath, Jaya Jagannath Swami, Jaya Jagannath. Jai Baladeva, Jai Baladeva, Jai Baladeva, Jai Baladeva, Jai Baladeva. Jai Subhadra Mai, Jai Subhadra Mai, Jai Sudarshan, Jaya Jaya Sudarshan, Jai Subhadra Mai. Radha Pad Sati, Radha Pad Sati, Radha Pad Sati, Radhe Radhe. Radha Pad Sati, Radha Pad Sati. Jaya Radha Syama Sundar, Radha Syama Sundar, Radha Syama Sundar, Radhe Radhe. Radha Syama Sundar, Radha Syama Sundar. Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Vrindavana Ram, Jaya Vrindavana Ram, Jaya Vrindavana Ram, Vrindavana Ram, Jaya.
Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranga, 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 Gauranga. Gauranga, 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 Gauranga. Jai Sachinandana Gaura Hare, Jai Sachinandana Gaura Hare. Gaura 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 Hare, Gaura 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 Hare. Gauranga, 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 Gauranga. Gauranga, Jaya Gauranga, Gauranga, Jaya Gauranga, Gauranga, Jaya. Jai Sachinandana Gaura Hare, Jai Sachinandana Gaura Hare, Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram. Nitai Nitai Jaya Nitai Nitai, Nitai Nitai Jaya Nitai Nitai, Nitai Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram, Jaya Nityananda Ram, Nityananda Ram Jaya Nityananda Ram. Nimai Nitai Jaya Nimai Nitai, Nimai Nitai Jaya Nimai Nitai. Gauranitai Jaya Gauranitai, Gauranitai Jaya Gauranitai. Jaya Sita Ram Lakshmana Hanuman, Sita Ram Lakshmana Hanuman. Sitaram, 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 Sitaram. Lakshmi Narasimha Jaya, Lakshmi Narasimha, Narasimha Jaya, Prahlad Narasimha, Lakshmi Narasimha Jaya.
जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद 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 श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा श्रील गुरुदेवा 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 श्रील गुरुदेवा हरि बोल 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 गौर हरि बोल जय हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल 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 गौर 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 हरि हरि बोल 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 निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्री राधा पाद सारथी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी चक्रास सुदर्शन की गौर निताय पंचतत्व भगवान की लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की तुलसी महारानी की षट गोस्वामी भक्तवृंद की गुरु परंपरा की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वयं रूपा कथा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरों श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरों वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगना रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगनललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। थोड़ा आगे आ जाइए, इतना दूर क्यों बैठ रहे? तो आज हम रिवाइज नहीं करेगा, टाइम हो गया लेट। तो आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? चैतन्य शास्त्रगम का आगे बढ़ाने का या आज दो महान आचार्य का तिरुभाव दिवस है। किस किस का है याद है? मैसेज में भी भेजा हमारे पुंडरी ग्रुप को, किसी को पढ़ा? और कोई माता जी लोग पढ़ा? कुछ पढ़ते हैं आप? ग्रुप में मैसेज आएगा तो ये ग्रुप में कौन दिखेगा, सोचेगा ये ग्रुप में ऐसे ही आते रहेगा, क्लास को बुलाते रहेगा क्या? हाँ क्या देख के नहीं, बिना देख के। हाँ इतना महान आचार्य लोग इतना कुछ करके हमारे लिए जाते हैं, हम एटलीस्ट उसका नाम भी याद नहीं करेगा तो कृपा कैसे मिलेगा? हाँ भगवत नाम जाने के लिए कृपा चाहिए। तो भगवान की कृपा चाहिए तो पहले भगवान के भक्त का कृपा चाहिए। कितना हम भगवान के भक्तों के बारे में सुनेगा, भगवान इतना प्रसन्न होगा और कृपा दिएगा। तो कितना लोग को जानते हैं ये दोनों के बारे में? श्रील रघुनंदन दास ठाकुर एंड वंशीदास बाबा जी महाराज। हाथ खड़ा करिए, लाइक कितना लोग जानते हैं? किसी को जानते नहीं? हाँ सीनियर डिवोटीज, दीक्षित माता जी, दीक्षित प्रभु जी। हाँ ये लोग के बारे में जानना चाहते हैं या आगे? एनीवे हम कर रहे वही करने का। स्लो का क्या करना चाहते हैं? हाँ
आज के दिन बहुत ही प्रसन्न रहते हैं सच आचार्य लोग, क्योंकि वो भगवत धाम गया वो शुभ दिन है सच। तो उसके बारे में सुनने भी एक सेवा है सच। तो रघुनंदन दास ठाकुर कौन है? मुकुंद दास की बेटा। तो मुकुंद दास कौन है? हाँ, दो मुकुंद है, एक मुकुंद दत्त और मुकुंद दास। मुकुंद दत्त है वो चैतन्य महाप्रभु का क्लासमेट, बट इधर रघुनंदन दास ठाकुर का पिता है वो, उसका नाम है मुकुंद दास सच। वो चैतन्य महाप्रभु की पार्षद है सच, चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेते हैं सच। हाँ, वो मुकुंद है सच। नवद्वीप के पास श्रीखंड करके एक गांव है, उधर पैदा हुआ है सच। तो श्रीखंड नवद्वीप के पास कटवा है। कटवा किसी को मालूम है? कटवा किसके लिए प्रख्यात है? कटवा मायापुर के पास। कटवा चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिया अपना गुरु से, तो वो जगह का नाम है कटवा। वो लीला स्थली है अभी भी, किधर चैतन्य महाप्रभु बैठ के अपना बहुत ही सुंदर कुंडल बाल को है ना निकाला है सच। सभी लोग रोते रहा है सच। तो उससे 3-4 किलोमीटर दूर है ये श्रीखंड। तो उधर सच मुकुंद दत्त के एंसेस्टर्स रहता था, उसी जगह नेटिव प्लेस है, उधर ही रहता था सच मुकुंदा। तो मुकुंदा माधव तो ये नरहरि सरकार, ये तीनों भाई है, 3 ब्रदर्स है। नरहरि सरकार के बारे में सुना? हाँ, घोर आरती सुना? घोर आरती, हाँ। घोर आरती में छत्र पकड़ते हैं करके एक पद आता है ऐसे, नरहरि चक्रवर्ती। तो ये भी बहुत महान भक्त है, चैतन्य महाप्रभु का पार्षद है ऐसे। तो नरहरि सरकार तो पूरा ऐसे, वो उसको और कुछ पता नहीं, गौर कृष्ण भी पता नहीं उसको, कृष्ण भी नहीं चाहिए, वो हमेशा गौर का ही पूजा करता था, गौरांग महाप्रभु का। तो पूरा गौर लीला में निमग्न रहता था, गौर को ही चिंता करता था, गौर के ऊपर ही सॉन्ग सुनता था, लिखता था एंड ऑल। वो सॉन्ग्स लिखा गौरांग महाप्रभु के बारे में सच। हाँ, नरहरि सरकार। तो ये लोग सच मुकुंद है सच, ये वृंदा देवी का अवतार है सच। कृष्ण लीला में वृंदा देवी है, वो गौर लीला में मुकुंद के रूप में आता है सच। नरहरि सरकार है, वो चमर डुलाते मतलब वो चमर किधर डुलाते हैं, लाइक मंदिर के बाहर नहीं, अंदर रहते। दैट मीन्स वो अंतरंग पार्षद है, सखी है, मधुमती सखी है, उसका इंकारनेशन है सच। भगवान की सखियों में एक है मधुमती, उसका एक इंकारनेशन है नरहरि सरकार है सच, गौर लीला में सच। और रघुनंदन दास ठाकुर है, वो एज पर गौर गणोदय दीपिका कौन कौन गौर लीला में आया वो बुक बताते हैं रघुनंदन दास ठाकुर। लाइक कंदर्प मंजरी है एज सच। और प्रद्युम्ना का भी इंकारनेशन है, रुक्मणी का बेटा
तो रघुनंदन भक्ति सीखते मेनली किससे सीखते? चाचा से सीखते। चाचा कौन है? मुकुंद। चाचा कौन है? 3 भाई क्या बोला मैं? 3 भाई कौन कौन है? हाँ, नरहरि सरकार, मुकुंदा और माधव। तो इसमें नरहरि सरकार बहुत ही बड़ा भक्त है गौरांग महाप्रभु का, तो उससे एसएच गौर भक्ति सीखा एसएस रघुनंदन दास ठाकुर छोटा उम्र से एसएच। तो रघुनंदन दास ठाकुर छोटा उम्र से ही 5 साल से ही एसएच वो भगवान गौर की भक्ति करने लगा, और कुछ रुचि नहीं रखा एसएच। वो बाकी बच्चों जैसा खेलना कूदना खाना है ना, तो हमेशा वो भगवान की डीटीज़ वो देखता था एसएच। नरहरि सरकार इवन उसका घर पे एक डीटी है भगवान कृष्ण का, वो कृष्ण को भी पूजा नहीं करते थे। वो तो बोलते मेरा आराध्य जय है गौर है, तो मुकुंद को बोलते आप वर्शिप करो इसको। तो मुकुंद गोपीनाथ जी को सेवा करता था, है ना। रघुनंदन दास ठाकुर और नरहरि सरकार ये गौर को सेवा करता था एसएच, बट तीनों एसएच महान भक्त है गौरांग महाप्रभु का एसएच। तो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, प्रकट श्रीखंडवासी नाम श्री मुकुंद दास ताहार नंदन श्री रघुनंदन प्रकाश। मतलब क्या है? प्रकट श्रीखंडवासी नाम श्री मुकुंद दास, है ना। श्री मुकुंद दास प्रकट हुआ, और ताहार नंदन कौन है? श्री रघुनंदन प्रकाश। श्री नरहरिदास सरकार ठाकुर संगे गौर गुण गाने करे परम आनंद। तो ये सभी लोग मिल के एसएच नरहरिदास ठाकुर, मुकुंद दास और रघुनंदन दास बहुत ही उत्साह से बहुत ही भाव से एसएच, है ना, परम आनंद से क्या करता था? गौर गुणगान करे, है ना, गौरांग महाप्रभु की गुणगान करते रहते हैं एसएच। मन रे कहर गौर कथा, ये नरहरि सरकार लिखा, है ना। हम गाते हैं एसएच वैष्णव सॉन्ग एसएच। तो मुकुंद है एसएच, ये गोपीनाथ डीटी है, उसके परिवार में ये परंपरा में आ रहा है। मुकुंद की पिता, उसका पिता, ऐसा बहुत लोग उसको सेवा करते करते अभी मुकुंद के पास आया, तो वो गोपीनाथ डीटी को सेवा करता था। बट मुकुंद है एसएच, उसका प्रोफेशन क्या है? किसी को मालूम है क्या करता था मुकुंद? भौतिक वृत्ति क्या है? चैतन्य चरितामृत में लिखते वो मेडिसिन है, डॉक्टर है एसएच। बहुत बड़ा मेडिसिन है दैट डायरेक्ट नवाब हुसैन शाह लाइक राजा को पर्सनल डॉक्टर है एसएच, मुकुंद एसएच। तो ऑलवेज बिजी रहता था, है ना। कभी राजा बुलाता तो जाना पड़ता था एंड ऑल। तो ऐसे ही लाइक एक दिन बुलावा आया, तो तब तक उसको माता जी तो बनाता था। आपके घर में क्या करते? माता जी लोग बनाते, प्रभु जी लोग ऑफर करते, या दोनों आप लोग ही करते हैं? कोई करते ऑफरिंग? हाँ। तो रघुनंदन दास ठाकुर का माता जी बनाता था, मुकुंद भोग लगाता था ऐसे। बट अभी मुकुंद तो जा रहे, तो अभी बेटा 5 साल हो गया, तो अभी बोलते दैट रघुनंदन आपको पता है भोग कैसे लगाने का? मैं बाहर जा रहे एसएच, मैं चाहते हैं आज आप लगाने का भोग। तो रघुनंदन बोलते हाँ, हर रोज़ देखते मैं आप जाते घंटी बजाते और ऑफ़र करते, मैं तो लगा सकते हैं एसएच। तो मुकुंद बोला दैट ये ऑफ़र करेगा मैं जल्दी जाने का, आप इससे कराओ एंड ऑल लाइक। तो उस दिन जाते एसएच, है ना, लाइक जैसे ही व्यंजन सब कुछ तैयार करते हैं माता, और रघुनंदन को बोलते रघुनंदन आओ, है ना,
ऑफ़र करो भगवान को। आपका पिताजी ने बोला भगवान को खिलाने के लिए, तो हर रोज़ आपका पिताजी खिलाता था भगवान को, तो आज मैं चाहते आप खिलाओ। आप भी बड़ा हो गया, अभी 5 साल हो गया, अभी सीखो सोली भगवान भगवान को कैसे खिलाने का ऐसा सच, है ना। तो प्रेम से आप भोग लगाओ ऐसा सच करके। तो मुकुंद हाँ, वो बहुत उत्साह से हाँ बोल देते हैं सच। और माता पूरा व्यंजन अंडोल सब कुछ तैयार करके देते हैं सच। ठीक है, आप भोग लगाओ अंडोल। तो मंत्र अंडोल जानते नहीं है सच, बट उसको मालूम है कैसे भोग लगाने का अंडोल। तो कर्टन को क्लोज करते, कर्टन के अंदर जाते और टम 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 करके बेल रिंग करते, भगवान को बोलते गोपीनाथ खा लो करके आ जाते हैं सच। मैं थोड़ा देर के बाद आया। उसका पिता भी ऐसा ही करता था, घंटा बजाता था और थोड़ा टाइम बाहर आता था, रुकता था और चले जाता था और वो चले जाता। तो वैसे ही यही सोचा ये तो तो एक बार तो बाहर आ गया, 5-10 मिनट हो गया। देन गोपीनाथ को अगेन क्लैप्स मारा और अंदर गया और देखा गोपीनाथ पाया नहीं। अरे मेरा पिताजी ने सेवा दिया आपको खिलाने के लिए, आप तो पाया नहीं आज से। उसको क्या मालूम है भगवान आंख से पाते हैं करके है ना। तो वो बोला दैट आपको और टाइम चाहिए तो ले लो। अगेन घंटी बजाया, घंटी बजा के अगेन आप जल्दी फॉलो एज सच, है ना। तो हम भी खाने के एज सच करें। तो अगेन घंटी बजाते और आते बाहर, अगेन वेट करते एज सच, है ना। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद अगेन अंदर जाते हैं गोपीनाथ, देखते हैं कर्टन के अंदर जाके वो पूरा प्लेट ऐसे ही पड़ा रहा। तो गोपीनाथ लाइक रघुनंदन दास ठाकुर को लाइक रोना आता है सच। देखो मेरा पिताजी गुस्सा करेगा, है ना, तो मेरे को ये सेवा दिया आपको खिलाने के लिए, आप खा नहीं रहे सच, है ना। फर्स्ट टाइम ऐसा सेवा दिया मेरे लिए, तो क्यों गुस्सा में हैं आप। प्लीज़ फॉलो एज सच, है ना। प्लीज़ 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 करके अगेन घंटी बजाते, अगेन आते, अगेन थोड़ा टाइम में रुकते अगेन जाते, अगेन कुछ नहीं होता है। इस बार रो पड़ता है सच, है ना। तो आप खाना ही पड़ेगा एज सच। आप खाएगा तो मैं नहीं जाएगा एज सच, अभी आप खाएगा तभी जाएगा। मेरा पिताजी बोला आपको खिलाने के लिए, आप खाते करके बोला, है ना। तो आप क्यों नहीं खा रहे एज सच करके रोने लगा, इतना भाव से रोने लगा लाइक गोपीनाथ पूरा प्लेट ख़त्म कर लेते हैं सच। तो भगवान को क्या चाहिए सच, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त प्रयच्छति तदा हम भक्ति उपहृतम अस्नामि प्रेतात्मना, है ना। भक्ति उपहृतम, प्रियता प्रियता प्रिय प्रिय प्रीति से सच, भक्ति से भगवान को ऑफर करेगा, वो स्वीकार करेगा सच, है ना। बट हम ऑफ़र करेगा और सपोज़ भगवान खा लिया, ठीक है, एक दिन तो अच्छा लगता है हमको, दूसरा दिन तीसरा दिन हम सोचेंगे क्या ये सब कुछ ख़त्म कर रहे करके तो इसलिए भगवान, है ना, लाइक आंख दृष्टि मात्र से एज सच वो खा लेते हैं एज सच, वो रेमनेंट्स वो भाव छोड़ते हैं एज सच, उसका कर्म निकाल के एज सच शुद्ध करके हमको प्रसाद के रूप में देते हैं एज सच, है ना। कोई भी एज सच गृहस्थ मतलब उसका मेजर लाइफ होना चाहिए भगवान के सेंटर्ड एज सच, है ना। प्रभुपाद बोलते गृह में थी मतलब उसका जीवन कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा भगवान से, कुछ लेना देना नहीं है भगवान से। बट गृहस्थ मतलब क्या है, उसका सभी कार्यक्रम सभी एक्टिविटीज़ ऐसे भगवान की सेंटर्ड होता है, भगवान उसके जीवन के बीच में रहते हैं, उसके जीवन के बीच में रह के पूरा कार्यकलाप करते हैं सच। तो माँ पूछते हैं सच किधर है, वो किधर है, क्या है करके तो वो बोलते भगवान खा लिया तो बच्चा बोलेगा तो क्या सोचेगा मदर। कोई भी पुजारी है लाइक हमको भोग लेने के बाद खाली प्लेट में आ रहे हैं, हम कोई पूछेगा वो पुजारी को भोग किधर है, भगवान खा लिया बोलेगा तो हम क्या बोलेगा हमको मालूम है यही खा लिया और बोल रहेगा। तो माता जी भी यही सोचा था, अरे ये तो भूख लग गई होगा बच्चा को,
वो खा लिया और ऐसा बोल रहे थे, ठीक है, इतना सीरियसली नहीं लिया सच। तो शाम को भी ऐसे ही होता है सच, शाम को भी भोग लगाते हैं, शाम को भी काली प्लेट लेके आते हैं, ठीक है बेटा इतना भूखा में है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है सच, है ना। तो तो इसके बाद तो मुकुंद आते रात को एज सच। वो बहुत भूखा से आते हैं और बोलते खिलाओ एज सच। और बोलते किधर खिलाऊं, आपका बेटा खा लिया सब कुछ, और बोलते दैट है ना भगवान खा लिया एंड ऑल। तो ठीक है बेटा तो भूखा है एज सच, बट वो बोलते दो बार ऐसा किया एज सच, है ना। तो गोपीनाथ रघुनंदन को बुलाते क्या है, क्या हुआ एज सच। हाँ पिताजी लाइक आपने खिलाने का बोला भगवान को तो खिला दिया सच, वो पा लिया, पहले तो पाया नहीं आज सच, वो रोया, रोने के बाद वो खा लिया आज सच। तो वो बिलीव नहीं कर पाता है सच, अरे भगवान कैसे खाते हैं सच, है ना, ऐसा कैसे हो सकता है सच। तो नेक्स्ट मॉर्निंग उसका पूरा रात ऐसा ही चला ऐसे, रियली भगवान खाया क्या सच, पूरा रात सोचते रहा। सुबह अगेन बोला, रघुनंदन को बुलाया, रघुनंदन आओ अगेन ऑफर करो ये लड्डू को। बोला लड्डू ही है, अभी सुबह सुबह देखना चाहते हैं ऐसे, है ना, कुछ अभी व्यंजन नहीं बना, क्या है पूछा, लड्डू है, हाँ लड्डू लेके आओ ऐसे। रघुनंदन को दिया कटोरा में, रघुनंदन जाओ गोपीनाथ को ऑफर करके आओ। तो अगेन रघुनंदन गया एज सच, और बट वो पीछे छुप गया एज सच, और वो पीछे छुप के विंडो से देखने का चालू किया एज सच, क्या कर रहे हैं ये, खा रहे हैं आज भगवान कुछ कर रहे हैं ऐसे करके। तो ये पीछे छुप गया और रघुनंदन तो अगेन खिलाया ऐसे। इस बार तो मालूम है भगवान को ऐसा कुछ होने वाला है करके, वो खाया नहीं ऐसे। देन अगेन रोने लगा रघुनंदन, अगेन आप रोते तभी खाएगा या पता नहीं, आप खा लो प्लीज़। अगेन मेरा पिताजी बोला ऐसे, है ना, मेरे को भी अच्छा लगता है ये मिठाई, जल्दी खा के दे दो, सब कुछ मत खाओ। एक दो मेरे लिए बचाओ, मैं भी खाने का ऐसे। तो खाते नहीं तो अगेन रोते, तो रोते रोते अगेन गोपीनाथ हाथ उठाते ऐसे, मुंह में रखने की कोशिश करते हैं ऐसे, है ना। तो तब तक वो विंडो खोल के देखते क्या कर रहे हैं भगवान ये। तो वो देख लेते भगवान रियली लड्डू को उठा के मुंह में डाल रहे हैं ऐसे। तो इमीडिएटली भगवान देख लिया, मुकुंद देख रहे करके वो रुक जाता है ऐसे, ऐसे ही लड्डू के साथ। तो भगवान की पोस्चर भी चेंज हो गया गोपीनाथ का। अभी भी हम उस जगह जाएगा, उस डीटी अभी भी दर्शन कर सकते हैं, भगवान लड्डू खाने का पोस्चर में हमको दर्शन देता है ऐसे। तो मुकुंद बहुत ही खुश हो जाता है सच, है ना, ऐसा मेरा बेटा इतना भक्ति है सच, है ना, मेरा बेटा के हाथ से खाया अंडोल है सच ने। तो ये फेमस पास्ट टाइम है ना श्रीखंड का, श्रीखंड में आप जाएगा गोपीनाथ डीटी है सच, आप दर्शन कर सकते हैं अभी भी लाइक, है ना, ऐसा पास्ट टाइम हुआ करके। तो रघुनंदन दास ठाकुर छोटा उम्र से ही भगवान की बहुत बड़ा भक्त है सच, है ना, कृपा पात्र है चैतन्य महाप्रभु का सच। बहुत कुछ बड़ा होने के बाद बहुत कुछ लीला किया है सच, है ना। रघुनंदन ठाकुर कब पैदा हुआ? 1510 में पैदा हुआ। चैतन्य महाप्रभु कब पैदा हुआ? हाँ 1486 है ना। तो रघुनंदन एज सच पैदा हुआ उस टाइम चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेके श्रीरंग यात्रा कर रहे, साउथ इंडियन यात्रा, तब एज सच रघुनंदन दास ठाकुर पैदा हुआ एज सच, है ना। तो अराउंड 25-26 ईयर्स का गैप है सच। बट इसके बाद पैदा होने के बाद लाइक वो चैतन्य महाप्रभु का पास्ट टेंस में वो भाग लिया एज सच, है ना। तो बहुत क्लोज रिलेशनशिप है मुकुंद को लाइक गोपीनाथ डीटी से एज सच, रघुनंदन को एज सच। तो चैतन्य महाप्रभु पूरा जीवन एज सच आदेश दिया रघुनंदन दास ठाकुर को, और कुछ सेवा नहीं दिया। कितना भी जीवन है आपका, पूरा जीवन आप किसका सेवा करेगा? गोपीनाथ डीटी का सेवा करेगा, यही आपका पूरा सेवा है, ये मेरा आज्ञा है, आपका ड्यूटी एक ही है दैट गोपीनाथ जी का सेवा पूजारी बन के एज सच। तो पूरा जीवन एज सच रघुनंदन दास ठाकुर
गोपीनाथ को एज सच ये किया। एक बार ऐसे ही रघुनंदन दास ठाकुर, एक गोल्डन रिंग है उसका पिताजी ने दिया एक रिचुअल में एज सच, वो खो जाते हैं एज सच। तो खो जाते तो बच्चा बहुत डर लगता है एज सच, अभी क्या होगा, क्या बोलेगा एंड ऑल ऐसे। तो किधर भी खेला हुआ है वो, देन गोपीनाथ जी के पास जाके रोते हैं ऐसे, गोपीनाथ जी अभी मेरा रिंग खो गया, थोड़ा दिलाओ ये वो करके। उस टाइम भी अगेन गोपीनाथ जी रेसिप्रोकेट करते हैं दैट वो गोल्डन रिंग एज सच आल्टर के अंदर आ जाते हैं एज सच, है ना। और गोपीनाथ बहुत खुश हो, रघुनंदन दास ठाकुर बहुत खुश होते हैं एज सच, है ना। ऐसा आदान प्रदान बहुत करते हैं एज सच, है ना। उसका पिताजी भी सामान्य भक्त नहीं है सच, है ना। चैतन्य महाप्रभु वर्णन करते मुकुंद के बारे में भी, है ना। तो वो एक बार केतुरी लाइक सभी लोग जाता था 4 महीना चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए, है ना। तो चल के जाता था, 15-1 महीना लगता था चल के, हाँ द्वीप से मायापुर जाना, देन 4 महीना रहना, देन वापस आना, 5-6 महीना ऐसे ही चले जाते थे लोगों का। तो ऐसे ही गया सच। तब चैतन्य महाप्रभु मुकुंद से पूछते हैं सच, चैतन्य चरितामृत में वर्णन है सच, कांडेरा मुकुंद दासा श्री रघुनंदना श्री नरहरि यही मुख्य तीन जना। तो इसके बाद लाइक एक कॉन्वर्जेशन होता है चैतन्य महाप्रभु से, लाइक कौन है वैष्णव, ये पूछते हैं सच। अलग अलग साल में आके अलग अलग पहले बोलते कोई भी कृष्ण नाम लिएगा वो वैष्णव है, बाद में बोलते निरंतर कृष्ण नाम लिएगा वो वैष्णव है, बाद में बोलते किसका मुख देख के इमीडिएटली भगवान के नाम आते हैं वो परम वैष्णव है। तो ये कॉन्वर्जेशन के बाद चैतन्य महाप्रभु कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं ये टॉपिक। इसके बाद डाइवर्ट करते हैं चैतन्य महाप्रभु मुकुंद के बाद। हम मुकुंद को देख के ऐसे चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मुकुंद दासेर पूछे सचिर नंदना, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हारा श्री रघुनंदना। तो क्वेश्चन पूछ रहे ऐसे मुकुंद से दैट सचनंदन क्या पूछ रहे, मेरे को डाउट है आप दोनों में कौन पिता है, तुम्ही पिता पुत्र तुम्हारा श्री रघुनंदन, या किव रघुनंदन पिता तुम्ही तारतानया, निश्चय करिए कहा योग संशय। मेरा संशय है सच। क्या संशय है, मेरे को ये डाउट है, मेरे को ये क्लियर करो कौन आप दोनों में कौन पिता है कौन बेटा है। रघुनंदन आपका पिता है, रघुनंदन आपका बेटा है या रघुनंदन आपका पिता है, ये डाउट आ रहा है मेरे को बताओ कौन है रघुनंदन। तो मुकुंद कहे रघुनंदन मोर पिता होया, आमी तारा पुत्र यही हमारा निश्चय। तो क्या बोला, हाँ हाँ हाँ, मुकुंद क्या बोल रहे, हाँ रघुनंदन ठाकुर मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूँ एज सच। क्यों, मुकुंद बोलते आम सवार कृष्ण भक्ति रघुनंदन हविते, अतएव पिता रघुनंदन हमारा निश्चित है। हम सभी कृष्ण भक्ति में आया क्योंकि रघुनंदन के वजह से। ऐसे रघुनंदन के पहले पैदा होने के पहले हम इतना भक्त नहीं है, बट रघुनंदन पैदा होने के बाद हमको कृष्ण भक्ति आया एज सच। देयरफॉर मेरे मन में ये लगता है दैट मैं उसका पिता नहीं हूँ, रघुनंदन मेरा पिता है एज सच। तो कृष्ण भक्ति मतलब ये क्या है कि कृष्ण के प्रति प्रीति है एज सच, है ना। तो कोई भी एज सच, है ना, भगवान हमको भगवान की भक्ति में हमको लेके आते हैं, वो एज सच असली पिता है हमको, है ना। हमको भौतिक पिता तो है एज सच, बट असली पिता कौन है एज पर चैतन्य महाप्रभु, एज पर मुकुंद, कौन हमको कृष्ण भक्ति लेके आते हैं, कौन हमको सिखाते हैं, हमारा गुरु, हमारा गुरुजन लोग एंड ऑल, लाइक वो एक्चुअली हमारा पिता होना चाहिए, क्योंकि वो एज सच हमको असली श्रेय का कारण बन रहे हैं एज सच। भौतिक पिता माता हमको
जस्ट शरीर दे रहे, बट हमको अल्टीमेट श्रेय नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, है ना, वो नहीं सिखा रहे सच, है ना। तो गुरु न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् न पतिस् न स्यात् दैवं न सस्यात् न पतिस् सस्यात् न मोचयति यत् समुपैति मृत्युम। कोई भी गुरु पिता कोई भी बन नहीं सकते, माता या फ्रेंड या गुरु, तब तक हमारा डिपेंडेंस है, उसको हम समुपैति मृत्युम, है ना, मृत्यु से बचा सकते हैं एज सच, है ना। तो वो कभी भी अधिकार नहीं है गुरु को और पिता बनना, गुरु बनना, माता बनना एंड ऑल एज सच, है ना। तो कोई भी हमको सिखा रहे एज सच कृष्ण भक्ति एज पर चैतन्य महाप्रभु एज सच, वो एज सच हमारा असली पिता है एज सच। इस्कॉन में भी हम देखते हैं बहुत कुछ, पहले बच्चा भक्त बनते हैं, इसके बाद माता पिता भक्त बनते हैं सच, ऐसे बहुत केसेस है सच, है ना। तो रघुनंदन जैसा, तो उस केसेस में क्या है, क्या बोलना चाहिए, वो एज सच बेटा है मेरा, बट वो मेरा पिता है, क्योंकि लाइक मेरा अल्टीमेट श्रेय, मैं भगवान के पास जाना, इस मानव जन्म का एक उद्देश्य है एज सच, है ना। वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है एज सच, वो असली गुरु है, वो असली पिता है एज सच, है ना। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु उस उद्देश्य में बोल रहे हैं एज सच। सुने हर्ष होये प्रभु कहिला निश्चया, यान होते कृष्ण भक्ति से ही गुरु होया। तो hearing Mukundadas giving his proper decision, Chaitanya Mahaprabhu confirmed it, saying, yes, it is correct. One who awakens devotion to Krishna is certainly the spiritual master and the father. तो वो बहुत ऋणी होना चाहिए सच लगता है। तो ऐसा भक्त लोगों की महिमा गा रहे सच, है ना। भक्तेर महिमा प्रभु कहते पाय सुखा, भक्तेर महिमा कहते होय पांचमुखा। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे इतना सुख मिलता था ऐसा सच, भक्तेर महिमा प्रभु कहते पाया सुखा, है ना। डिवोटी इतना रिलीज होता है ऐसा सच दूसरा डिवोटी का गुणगान गाने से ऐसा सच। निगू लाइक भक्तेर महिमा कहते होय पांचमुखा, दैट मीन्स लाइक भगवान कभी डिवोटीज का ग्लोरीफाई करते हैं ऐसा सच, उसका मुख एक मुख नहीं 5 मुख हो जाते हैं और इतना ग्लोरीफाई करने लगता है सच। ऐसा ही मुकुंद को ग्लोरीफाई कर रहा है सच। तो मुकुंद को क्या बोलते हैं, दैट मुकुंद आप मत सोचो, भक्तों को बोल रहे हैं दैट मुकुंद ऐसा नहीं कि ऑर्डिनरी भक्त है सच। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे भक्त गणे कहे सुना मुकुंदेर प्रेमा, निगूढ़ निर्मल प्रेमा ये न दग्ध हेमा, है ना। वो भक्तगण सुनो, भक्तगण को बोल रहे चैतन्य महाप्रभु सुनो मुकुंदेर प्रेमा, मुकुंद का प्रेम कैसे है एज सच। उसका एग्जाम्पल मैं देते एक, बाह्य राज वैद्य इन्हो करे राज सेवा, अंतरे कृष्ण प्रेम इन्हारा जानी बेका केवा। तो वो बोल रहे बाह्य रूप से वो राज वैद्य का राजा का सेवा कर रहे वैद्य के रूप में, बट अंतर कृष्ण प्रेम इन्हार जानी के बहेरा। तो बट इंटरनली मुकुंद को बहुत निगूढ़ प्रेम है, प्रीति है भगवान के प्रति आज सच। इसका प्रूफ क्या है, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे एक दिन म्लेच्छ राजेर उच्चो तुंगिते चिकित्सार बात कहे तान्हारा अग्रते। एक दिन ये मुकुंद है ना, राजा के पास आया, वो उच्च आसन में बैठा है सच, एंड राजा को बता रहे हैं सच क्या मेडिकल ट्रीटमेंट लेना चाहिए आप। हे न काले एक मयूर पुच्चेर आदानी राज सिरोपरि धरे एक सेवकानी। वही समय एक मयूर पुच्चेर आदानी एक फैन लेके आया, किससे बना हुआ, पीकॉक फेदर से सच, एंड राजा सिरोपरि धरे एक सेवक आनी, है ना। तो वो बोला, वो राजा के ऊपर घुमाने के लिए पकड़ा है सच। सिका पिच्ची देखी मुकुंद प्रेमाविष्ट होइला, अति उच्च तुंगी होते भूमिते पड़ीला। मुकुंद इतना प्रेम है भगवान से सच, है ना। भगवान की संबंधित कुछ भी वस्तु उसको दिखाई पड़ा सच, है ना। तो अभी ऐसा दिखाई पड़ा दैट पीकॉक फेदर लाइक मयूर पिच, तो उसको देख के इमीडिएटली मुकुंद को भगवान कृष्ण याद आ गया सच, और याद आके लाइक पूरा भाव विभोर होके वो मूर्छित होके गिर पड़ा पूरा नीचे तक सच। ऊपर राजा बैठा, उधर से नीचे गिर के अनकॉन्शियस होके सच।
सो राजार ज्ञान राज वैद्यर होइल मरना आपने नामीय तबे करिल चेतना। तो राजा सोचा ये क्या हो गया, ये मुकुंद को मर गया है क्या, ये इतना इतना ऊपर से गिर गया सच। तो एक बार पूरा अब पर्सनली वो भाग भाग के जा गया और मुकुंद को उठाया सच, क्या हुआ करके। राजा बोले व्यथा तुम्ही पाहिलं कोण तानी, मुकुंद कहे अति बड़ा व्यथा पाई नाही। तो क्या हो गया मुकुंदा, क्यों ऐसा हो गया, कैसे मूर्छित हो गया, बहुत बहुत दर्द हो रहे है क्या सच। मुकुंद कहे अति बड़ा व्यथा पाई नहीं, इतना बड़ा पेन नहीं है, इतना बड़ा व्यथ नहीं है मेरे को ऐसा, आप चिंता मत करिए। राजा कहे मुकुंद तुम्ही पड़िला का लगी, मुकुंद कहे राजा मोर व्याधि अच्छे मुर्गी। तो मुकुंद ये नहीं बोल रहे दैट मेरे को भगवान याद आया, मुकुंद ये बोल रहे मेरे को व्याधि है, मेरे को एपिलेप्सी है। थोड़ा कभी कभी एपिलेप्सी लोगों को क्या होता है, मूर्छित हो के कभी वक्त लोग अपने आप को गुणगान नहीं चाहते हैं सच, अपना को बड़ा करना नहीं चाहते। ये सभी हम देख सकते हैं सच, कोई भी बड़ा भक्त है सच हमारा शास्त्र में, तो वो अपने आप को कभी आगे नहीं बढ़ाते, अपने आप के बारे में बोलते नहीं हैं, हमेशा सेवक के रूप में अपने आप को छुपा के रखते हैं सच। तो महाविदग्ध राजा से ही सब जाने, मुकुंदेरा होइल तानरा महासिद्ध ज्ञान है। बट राजा है बहुत बुद्धिमान है सच, वो जान लिया है सच मुकुंद ऐसा क्यों हुआ है सच, है ना। तो ऐसा मुकुंद का ग्लोरीज गाते हैं सच चैतन्य महाप्रभु, और बोलते रघुनंदन सेवा करे कृष्ण र मंदिर आया। तब तीनों आ जाते हैं ऐसे चैतन्य महाप्रभु के पास। तब रघुनंदन दास ठाकुर को बोलते रघुनंदन सेवा करे कृष्ण र मंदिरे, द्वारे पुष्करिणी तारा घाटेर ऊपरे, कदम्बेर एक वृक्षे पूते 12 मासे, नित्य द्वय फूला होय कृष्णा अवतम से। तो अगेन मुकुंद के बारे रघुनंदन को आज्ञा दे रहे हैं सच भगवान, लाइक आप सच मंदिर में आप सेवा करना चाहिए सच, है ना। तो रघुनंदन को बोल रहे चैतन्य महाप्रभु आप किधर मंदिर है श्रीखंड में, उसके सामने एक कदम एक लेक है सच, एक सरोवर है ना। तो उसके सामने कदम पेड़ उगेगा सच, आप क्या करना चाहिए, उस कदम पेड़ हर रोज़ 2 फूल दिएगा, कोई भी सीज़न है ऐसे कदम पेड़ फूल हमेशा नहीं देते हैं सच, है ना, एक पर्टिकुलर सीज़न में ही देते। बट चैतन्य महाप्रभु पहले ही बोल दिया रघुनंदन आप मेरे को मालूम है दैट आप कदम कितना प्रिय है, मेरे को सेवा के लिए यूज़ करने के लिए कोशिश करते, बट मैं चाहते आप कदम पूरा साल आपके पास कदम के पेड़ की फूल हो ऐसे, तो मैं आपको सेवा में लगा रहे, आपका सेवा यही है, वो कदम पेड़ से 2 फूल तोड़ो हर रोज़ और मैं भगवान को अर्पण करो और अच्छी तरह सेवा करो ऐसे। और मुकुंदेर कहा पुनः मधुर वचना, तुम्हारा कार्य धर्म में धन उपार्जना। तो मुकुंद को बोला आपका काम क्या है तो आप क्या करेंगे, आप धन उपार्जन करो, भगवान की सेवा में लगाओ ऐसे। रघुनंदेर कार्य कृष्णेर सेवना, कृष्ण सेवा विना इन्हारा अन्य नहीं माना। तो रघुनंदन तो भगवान की सेवा करेगा, बट आप क्या है, आप कमाओ ऐसे। रघुनंदन को इस सभी में मत लगाओ ऐसे। रघुनंदन को ऐसा कुछ भी इच्छा नहीं है, कृष्ण सेवा विना इन्हारा अन्य नहीं माना, उसको मन ही नहीं लगता है कुछ और करने के लिए, तो अच्छा है उसको इसी में लगाओ ऐसे। और नरहरि ठाकुर को बोल रहे नरहरि रहु हमारा भक्त गणे सने, यही 3 कार्य सदा करह 3 जने। तो नरहरि सरकार को बोल रहे थे आप मेरे साथ रह जाओ भक्तों के साथ, मुकुंद जाओ आप कमाओ, रघुनंदन जाओ आप पुजारी बनो, और आप नरहरि सरकार आप क्या करो मेरे साथ रहो, भक्तों के संग ले लो, और ये तीनों कार्य सदा करह 3 जने। तो ये 3 कार्य आप 3 जन करके सेवा करिए सच सच करे, तो सभी इम्पोर्टेंट है सच। महाप्रभु इस शिक्षा से बता रहे सच, अलग अलग सेवा करते लोग, अलग अलग सेवा, ऐसा नहीं कि दैट ओनली पूजा करते हैं पुजारी वो ही सेवा इम्पोर्टेंट है ना, ऐसा नहीं कि लेकिन नहीं को प्रचार करने को बोला नरहरि सरकार भक्तों के साथ मेरा वही इम्पोर्टेंट है ना, ये धन कमाना इम्पोर्टेंट नहीं है एंड ऑल। तो हर एक को एक एक सेवा होता है,
उस सेवा के रूप में भगवान को सेवा करते हैं सच, है ना। गृहस्थ का धर्म क्या है? गृहस्थ का कर्म यही है, बाकी 3 आश्रम को पालन पोषण करना है सच। प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यास लोग कमाते नहीं हैं, बट गृहस्थ एक ही कमा सकते हैं। तो उसका क्या करना चाहिए? उसको वो कमा हुआ पैसा भगवान की सेवा में लगाना चाहिए सच। तो ये लाइफ लॉन्ग ऑर्डर है, ये लोग पूरा जीवन इस चैतन्य महाप्रभु की ऑर्डर को फॉलो किया है सच। तो रघुनंदन दास ठाकुर के बारे में और भी कुछ लीलाएं हैं सच। अभिराम ठाकुर बताए, अभिराम ठाकुर ये भगवान की सखा श्रीधाम की अवतार है सच। गौर लीला में सच अभिराम ठाकुर के रूप में आया। वो विशेष भक्त है सच, वो इतना शुद्ध है सच। उसको एक वरदान मिला है दैट वो किसको भी सच दंडवत करेगा। वो विग्रह में भगवान नहीं तो विग्रह टूट जाते। वो किसी पत्थर को वो प्रणाम करेगा, उस पत्थर शालिग्राम नहीं है तो वो पत्थर टूट जाते। या कोई भी भक्त शुद्ध भक्त नहीं है तो उसको दंडवत किया तो उसका भी ख़त्म हो जाता है ऐसे। वो डरते इसके साथ। तो एक्चुअली वो ये सब सेवा करता था, कुछ डोंगी गुरु होता था ऐसे, है ना। मैं भगवान है, लाइक मैं भगवान की प्रेम पा लिया है, मैं अभी भाव अवस्था में है एंड ऑल। तो अभिराम ठाकुर जाता था उसके पास, जाके एक बार दंडवत करके देखता था ये क्या है ये इसका तो ऐसे ही रघुनंदन दास ठाकुर के बारे में पता चला, अरे ये तो भगवान की लड्डू खा लिया, ये सच है या नहीं, मैं देखते ये कितना बड़ा भक्त है, प्रेम है या नहीं इसको करके। तो अभिराम ठाकुर बोला जाओ मुकुंद को बोलो दैट मैं आ रहे करके घर। तो काप गया मुकुंद, अरे अभिराम ठाकुर आ रहे मेरा बेटा को देखने के लिए, क्या होगा मेरा बेटा है, वो पिता है ना, पता नहीं है वो बेटा इतना अच्छा भक्त है क्या है, इसको क्या मालूम। वो डर जाते हैं सच। मैं सुना इसका वो दंडवत करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो वो छुपा देते हैं उसका बेटा को, मुकुंद को। तो तब तक अभिराम ठाकुर आते हैं, उसको स्वागत करते हैं, बिठाते हैं, खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं। बट फाइनली पूछते हैं दैट किधर है सच आपका बेटा किधर है। वो अच्छा ये हमको मालूम नहीं आप आ रहे करके वो नानी का घर चला गया तो वो बहुत अभिराम ठाकुर बहुत ये परेशान हो जाता है, अरे क्या हो गया सच, मैं दर्शन करना चाहते हैं, उसको दंडवत करना चाहते हैं, वो ये नहीं हुआ करके तो डीटी को दंडवत करते हैं सच। डीटी कुछ नहीं होता है तो समझ जाते हैं डीटी में कृष्ण निवास है सच करके। तो वो दुखी से जा रहे हैं सच। देन उधर एक सरोवर है सच। किधर चैतन्य महाप्रभु बोला एक सरोवर के पास कदम पेड़ उगेगा उसमें 2 फ्लावर आएगा। तो उस तरफ जा रहे हैं सच। अभिराम ठाकुर बहुत निराशा से एक बच्चा को देखा सच, इतना तेजमय इतना सुंदर। वो बच्चा को देखते देखते आकर्षित हो गया और बोला इधर आओ इधर आओ इधर आओ। तो आया वो बच्चा, क्या नाम है आपका? मैं रघुनंदन तो किसका बेटा है आप? मैं मुकुंद दास की बेटा हूँ करके। देन वो समझ गया ये मुकुंद झूठ बोल गया सच करके। वो बहुत आनंदित हो जाते, उसको प्रेम आलिंगन करते हैं सच, है ना, नाचते हैं सच। उसको देख के नाचते हैं। तो वो नाचना देख के रघुनंदन को एक्सटेसी आ जाते, वो नाचने लगते, दोनों को भाव विभोर हो गए, दोनों ऐसा नाचते हैं सच। अभी भी ऐसा बताते रघुनंदन ऐसा नाचते हैं दैट इसका वो नुपुर कुछ है पैर में लगाते हैं, वो उड़ के सच 2 मील दूर में गिरा है सच। तो अभी भी उस प्लेस जगह है किधर रघुनंदन दास ठाकुर नृत्य करते हैं, तो उसका नुपुर गिरा और वो सरोवर बना ऐसा कुछ है। हाँ, अड़ाई सरोवर ऐसा कुछ है उसका नाम। तो अभी भी वो दर्शन कर सकते हैं सच। तो इसके बाद वो दोनों अश्रुधारा से प्रेम आलिंगन करते हैं लाइक बच्चा और ये। और इसके बाद मुकुंद लाइक रघुनंदन को अभिराम ठाकुर दंडवत करते हैं सच बट रघुनंदन दास ठाकुर महान भक्त है, उसको कुछ नहीं हो गया सच, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा ये है सच, लाइक बहुत ही प्रेम से सच भगवान की भक्ति करता था, कीर्तन करता था सच। उसमें एक और सरोवर है सच,
मधु पुष्करनी नाम है, किधर ये टेम्पल है, सरोवर है, वो सरोवर को ऐसे मधु पुष्करनी का नाम दिया गया है एज सच, क्योंकि रघुनंदन दास ठाकुर एज सच भाव विभोर होके इतना इतना एक्सटेसी में कीर्तन किया एक दिन एज सच अपना फैमिली के साथ एज सच। वो पता नहीं क्या हुआ, पूरा उसका सरोवर की पानी है वो मधु बन गया एज सच, हनी बन गया एज सच। तो कुछ टाइम के लिए एज सच, तो उसको उस टाइम से उस पुष्करिणी को एज सच मधु पुष्करिणी करके एज सच कहलाता है एज सच। तो ये रघुनंदन दास ठाकुर जगन्नाथपुरी में भगवान की उसका पिताजी के साथ जाता था, नारायण सरकार के साथ हर साल एज सच। तो उसमें लाइक ये श्रीखंड वासी ऐसा 7 ग्रुप होता था चैतन्य महाप्रभु को संकीर्तन करने के लिए, है ना। 7 लोग 7 ग्रुप बना के भगवान, एक एक ग्रुप में एक एक लीडर होता था, एक एक मेन डांसर होता था ऐसा। ऐसा ही श्रीखंड ग्रुप को 7 ग्रुपों में 14 ग्रुप है श्रीखंड ग्रुप, तो उसका लीड करता था हमारा नारायण सरकार, और उसमें मेन डांसर था ऐसा हर रथ यात्रा में वो रघुनंदन दास ठाकुर, और बहुत ही प्रिय सेवा देता था रघुनंदन दास ठाकुर को। हर बार रथ यात्रा के पहले गुंडीचा मार्जन करते हैं सच, भगवान चैतन्य महाप्रभु बहुत सावधान से चुनते हैं किसको क्या सेवा देना चाहिए एंड ऑल, है ना। वो इवन धोने के टाइम भी किसके साथ पानी लेने का, किधर किससे पानी लेने का, तो उसको एक रघुनंदन को ये सेवा देता था। कभी भी भगवान दैट वो मुख्य सिंहासन किधर गुंडीचा मंदिर में भगवान बैठते उसको धोने के लिए आते, उस धोने के समय रघुनंदन को बोलता था आप लेके आओ अभी मटका से पानी, तो आपका पानी से मैं भगवान की आसन को धोएगा करके। तो हर साल गुंडीचा मार्जन में रघुनंदन दास ठाकुर को ये सेवा मिलता था, किधर भगवान मेन गर्भगृह में गुंडीचा में किधर धोता था, उस टाइम चैतन्य महाप्रभु को मदद करता था पानी लेके। वो कौन है, वो फिक्स्ड है एज सच, वो सेवा वो रघुनंदन दास ठाकुर सेवा करता था एज सच। तो इतना बड़ा भक्त बन गया वो एज सच, चैतन्य महाप्रभु चला गया एज सच, है ना। एक बहुत ही एक फेस्टिवल आपको पता है केतुरी फेस्टिवल है, वो नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद एज सच लगाया एज सच केतुरी फेस्टिवल को एज सच। तो एक केतुरी फेस्टिवल में भी एज सच रघुनंदन दास ठाकुर अपना पार्षदों से लेके एज सच गाया और नाचा। हम सभी को मालूम है, वो आप केतुरी महामहोत्सव का कथा सुनेगा, उस टाइम चैतन्य महाप्रभु चला गया, बट नरोत्तम दास ठाकुर, जाह्नवी मैया और श्रीनिवास आचार्य सभी लोग आके केतुरी फेस्टिवल किया नरोत्तम दास ठाकुर। उसमें दिन रात भगवान चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन करते। तो उस केतुरी फेस्टिवल में भगवान नित्यानंद प्रभु के साथ प्रकट होते हैं स्वयं, और सभी भक्तों के सामने नाचते हैं सच, है ना। तो केतुरी फेस्टिवल में भी रघुनंदन दास ठाकुर मुख्य रोल निभाया सच। और इवन चैतन्य महाप्रभु दर्शन दिया, चैतन्य महाप्रभु जाने के बाद एक बार एकादशी में आज सच पूरा नाइट कीर्तन करता था मंदिर में रघुनंदन दास ठाकुर पूरा गांव के साथ। ऐसे ही एक एकादशी में पूरा रात कीर्तन कर रहे, ऐसे स्लोली कीर्तन करते रहा, गौर कीर्तन करते रहा, और इतना एक्सटेसी में चला गया। सभी लोग चिल्लाने लगा जय निमाय जय निताय, जय निमाय जय निताय, हे चैतन्य हे नित्यानंद करके ऐसे। तो इतना एक्सटेसी भाव में वो कीर्तन चला गया उस एकादशी के दिन। उस टाइम भी ऐसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु स्वयं उस कीर्तन में प्रकट होके नाचा वो लोग के सामने, ये सेकंड टाइम। और तीसरा बार भी ऐसे उसका चाचा भगवत धाम जाते हैं ऐसे नारायण सरकार, तो उसको फीस्ट के लिए ऐसे बुलाते हैं ऐसे सभी को, है ना। उसमें ऐसे नित्यानंद प्रभु का बेटा वीरभद्र भी आते हैं, सभी लोग आते हैं ऐसे। तो वो फीस्ट में भी रघुनंदन दास ठाकुर, मुकुंद, ये सभी बहुत बड़ा कीर्तन करते हैं और भोग लगाते हैं ऐसे नारायण सरकार को। वो शरीर छोड़ दिया उसको, और सामने गौर निताई को, और
पूरा प्रार्थना करते भाव से दैट आप आके प्लीज़ स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, भोग स्वीकार करो, और कीर्तन स्टार्ट करते अगेन इतना भाव में कीर्तन करते हैं सच। उसमें नित्यानंद प्रभु का वीरभद्र के साथ सच मुकुंद और रघुनंदन दास ठाकुर, वो कीर्तन भी इतना भाव में चले जाते, एक्सटेसी में चले जाते दैट खुद नारायण सरकार शरीर छोड़ के जाते हैं, वो खुद प्रत्यक्ष होता है सच सभी के सामने, है ना, लाइक वो भोग स्वीकार करने के लिए। इसके बाद इतना एक्सेसिव में चले जाते हैं, अभिराम ठाकुर को देखा सभी गांव लोग और रुक नहीं पा रहे सच, हे गौरा, हे नित्यानंद, हे चैतन्य। देन अगेन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आके नाचते गाते और उस टाइम अगेन प्रसाद स्वीकार करके जाते हैं सच। तो ऐसा बहुत कुछ पास्ट टाइम से रघुनंदन दास ठाकुर बहुत महान पार्षद है भगवान की सच। तो वो रघुनंदन दास ठाकुर का तिरुभाव भी बहुत ही लाइक विशेष रूप से हुआ है सच, है ना। तो उसको मालूम है दैट मैं कब जाने वाला है सच। तो वो देन वो निश्चय उसको पता चल गया दैट मैं जाने वाला है सच, किस टाइम में मैं जाने वाला है, उसको स्पिरिचुअल फोरसाइट है सच। तो ये सब कुछ एथलीट ड्यूटी से वो सब कुछ संभाल लिया और गोपीनाथ डीटी को संभालने के लिए उसको बेटा को दिया। अभी भी वो आप श्रीखंड जाएगा तो वो रघुनंदन दास ठाकुर की फैमिली ही अभी भी पूजा करते हैं उसको, है ना। तो रघुनंदन दास ठाकुर जाने के बाद वो उसका बेटा खन्नई ठाकुर उसका नाम है, तो उसको सौंपा गोपीनाथ जी का सेवा करने के लिए। तो अभी भी वो परंपरा ही अभी वो सेवा कर रहे उस डीटी का सच। तो इसके बाद सच रघुनंदन दास ठाकुर बोला ध्यान में बैठा और बोला अभी आप कीर्तन करो, गौर कीर्तन करते रहो। तो गौर कीर्तन करते रहा, तो ध्यान में बैठा और स्लोली, ऐसा नहीं कि भौतिक लोग त्याग करते, ऐसा त्यागा नहीं शरीर, है ना। सभी के सामने रघुनंदन दास ठाकुर का शरीर, है ना, स्लोली छोटा होते सभी के सामने अदृश्य हो गया। ऐसा नहीं कि दैट उसका बॉडी को जलाया गया है, दफनाया गया है, वो कीर्तन में उसका शरीर अदृश्य हो गया। ऐसा लिखा गया है चैतन्य रघुनंदन दास ठाकुर। वो आज का दिन ही है सच दैट रघुनंदन दास ठाकुर शरीर छोड़ा है सच, है ना। हाँ, श्रीखंड में सच चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन के सामने है सच। तो आज का दिन हम प्रार्थना करना चाहिए ये महान भक्त लोगों को, बहुत कुछ करके गया, एटलीस्ट हम सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए सच, है ना। इतना कुछ करके गया हमको प्रेरणा देने के लिए सच। तो एटलीस्ट हम नाम भी जानने का नहीं, उसके बारे में भी जानने का नहीं है, लाइक तो कैसे गौर भक्त हैं हम। तो ऐसे ही महान आचार्य वंशीदास बाबा जी महाराज। तो ये स्टार्ट करेगा तो अभी बहुत टाइम हो जाएगा ख़त्म करने के लिए। वंशीदास बाबा जी महाराज के बारे में बोलना बहुत कुछ है सच। तो वंशीदास बाबा जी महाराज उसी टाइम में पैदा हुआ, तब भक्तिविनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तीनों मिलता था एंड ऑल, तीनों डिस्कस करता था भागवतम एंड ऑल। उसी टाइम में सच वंशीदास बाबा जी महाराज का भी आविर्भाव हुआ अराउंड 1856 के टाइम में सच, बांग्लादेश में हुआ सच। तो ये तीन बाबा जी महाराज हमारा संप्रदाय में बहुत महान है सच। दो बाबा जी महाराज का हमको मालूम है, कौन है, हमारा गुरु परंपरा में होते हो दोनों, कौन और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। तो ये दो बाबा जी से, और तीसरा बाबा जी वंशीदास बाबा जी, उसके बारे में कम सुनते हम, बट आज का दिन स्मरण करना चाहिए। ये तीन हमारा परंपरा में बहुत बड़ा महान आचार्य है, बाबा जी वेश में है सच। तो वो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज सच परमहंस सन्यासी है सच। परमहंस मतलब प्रभुपाद जी बताते हैं परपट में, बहुत लेक्चर्स में, सन्यासी लोग 4 प्रकार का होता है, कुटीचा, बहुधा, परिव्राजकाचार्य और परमहंस। कुटीचा की सन्यासी वो है दैट
प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं तो वो घर परिवार छोड़ देते हैं सच, बट क्या करते हैं वो उसका गांव में ही रहते हैं और उसका घर परिवार से उसको हर रोज़ प्रसाद आते हैं खाने के लिए, वो बाहर की तरफ भी मांगेगा नहीं ऐसे। उसको बोलते कुटीचा। कुटीचा फर्स्ट स्टेज ऑफ संन्यास। तो सेकंड है बहुधा। बहुधा का मतलब दैट अभी वो गांव में ही रहते बट घर से प्रसाद मंगाना वो बंद कर लेते, वो मदगरी करते हैं सच, और घर से पूरा डिपेंड नहीं होते, पूरा अलग हो जाते हैं सच। और तीसरा है सच वो गांव भी छोड़ देते, वो अलग अलग जगह जाते, अलग अलग जगह जाके भगवान की प्रचार करते, उसको परिव्राजकाचार्य बोलते। और फोर्थ हाईएस्ट लेवल ऑफ संन्यास है वो परमहंस संन्यास है। वो साधन स्टेज में नहीं है, वो सिद्ध स्टेज में है, प्रेम और भाव स्टेज में है सच, है ना। वो किसी को लेना देना नहीं है सच, है ना। वो प्रचार नहीं करते सच, लाइक वो अपना भक्ति में मग्न रहते हैं सच, और अपना भक्ति, अपना माला, अपना सेवा, अपना डीटीज इसी में है सच। तो ये वंशीदास बाबा जी ये 14 लेवल का संन्यास है। क्या है? परमहंस सन्यासी। परमहंस सन्यासी मतलब कुछ लेना देना नहीं है, भौतिक रूल्स एंड रेगुलेशंस है। हम तो सुबह उठना चाहिए, उठ के पहले मुंह धोना चाहिए, नहाना चाहिए, देन मंत्रोच्चारण करना चाहिए, आचमन करना चाहिए, तभी डीटीज को टच करेगा, है ना। शुद्ध कपड़ा पहनने का बहुत कुछ रूल्स है, नियम है, 16 माला करो, है ना, बिना भोग लगा के मत खाओ, इतना रेगुलेशंस है साधना भक्ति में। बट सिद्ध अवस्था में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है वो लोगों को ज़रूरत नहीं है सुबह उठना, है ना, रूल्स एंड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है वो लोगों को डीटी सेवा में एंड ऑल। तो इसलिए कुछ परम सन्यासी लेवल का लोगों को दिखेगा, हम बिविल्डर हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा और अपराध करेगा ऐसे। एक ऐसा सन्यासी है सुबह उठते नहीं है, एक ऐसा सन्यासी है बिना भोग लगा के पा लेते हैं, एक ऐसा सन्यासी है वो बिना नहाते नहीं है, ऐसे ही रहते हैं एंड ऑल लाइक, है ना। ये दृष्टि से दिखेगा रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये साधक लोग के लिए, ये उस स्टेज तक पहुंचने के लिए सच। बट उस स्टेज तक पहुंच गया, राधा कृष्ण के प्रेम तक पहुंचने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हेल्प करते हैं, इसलिए साधना स्टेज में इतना रूल्स एंड रेगुलेशंस दिया जाता है सच। बट उस स्टेज में भगवान की भाव और प्रेम भक्ति में ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। वो भगवान के पास जाते, जूटा खिलाते, उसका जूटा, वो सका मानते हैं सच, वहाँ ये बच्चा मानते हैं सच, ये वात्सल्य में प्रेमी मानते हैं अंडल, वो कुछ घर का सदस्य मानते हैं सच, भगवान जैसा मानते नहीं वो लोग। तो उसको बोलते हैं परमहंस संन्यास। तो हमारा वंशीदास बाबा जी उस कैटेगरी का सन्यासी है सच, दैट वो उसका कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता था, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाता था, वो लोग सोचते थे पागल व्यक्ति है सच, ऐसे ही घूम रहे, कपड़ा नहीं पहनता था, है ना, जस्ट कोपिन पहनता था सच। तो हम बहुत केयरफुल रहने का, लाइक वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान न बुझाए जाए, है ना। वैष्णव की क्रिया मुद्रा है, हमारा बुद्धि से हम जज नहीं कर सकते हैं सच, है ना। पर्टिकुलरली ऊंचा वैष्णव लोग हैं, हमारा बुद्धि नहीं लगा सकते वो हमारे जैसा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो लोगों का स्टेज अलग है। बट हमको ऐसे सिखाने के लिए ऐसे प्रभुपाद परमहंस सन्यासी है, बट वो परिव्राजकार्य के स्टेज में आके प्रीचिंग करते हैं सच, हमको सिखाने के लिए। मैं फॉलो करेगा, वो लोग फॉलो करेगा, है ना। हमारे गुरु महाराज हर रोज़ 4 बजे 4:30 बजे उठ के वो स्थिति में मंगल आरती करने की ज़रूरत नहीं है, बट वो दूसरों को सिखाना चाहते हैं, अपना एग्जाम्पल सेट कर। बट वो लोग वो उस स्टेज में है, उसको कुछ उठने की ज़रूरत नहीं है, पूजा करने की ज़रूरत नहीं है ना, कुछ नहाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, वो हर बार भगवान के चिंतन में रहते हैं ऐसे। बट क्योंकि वो लोग हमको एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, हमको सिखाना चाहते हैं, तभी ये सभी एक्टिविटीज़ करते हैं। बट कोई सन्यासी ऐसा नहीं कर रहे, दैट मीन्स हम उसके अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। वैष्णवेर क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझाए जाए, चैतन्य महाप्रभु बोला गया है, वो कभी जज नहीं करना चाहिए एज सच परमहंस लोगों को एंड ऑल। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एज सच। तो ऐसा एक मछुआरा का फैमिली में पैदा हुआ वंशीदास बाबा जी, बहुत पुअर फैमिली है, गरीब फैमिली है ना। उसका नाम है भैरव उसका नाम है सच। तो बट
क्या करते हैं लाइक जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाएगा तो पेरेंट्स अपना अपना प्रोफेशन में लगा देते हैं, किस किस कार्य कर रहे उसी कार्य में लगा देते हैं। ऐसे ही भैरव को मछली का काम में लगा दिया। हर रोज़ भैरव थोड़ा थोड़ा बड़ा हो गया, हर रोज़ जाता था, मछली को पकड़ के लेके आता था, बेचता था, खाता था, ये सब कुछ करता था। बट वो उसी गांव में सच नरोत्तम दास ठाकुर का एक महान भक्त है, नरोत्तम दास बाबा जी करके एक बाबा जी रहता था। तो वो मछली बेच के आता था, तो ये नरोत्तम दास बाबा जी बहुत ही अच्छा सुंदर से सच गौर कीर्तन करता था सच। तो वंशीदास बाबा जी महाराज उससे बहुत आकर्षित हो जाता था, तो रुक जाके सुनता था। सुनते सुनते कुछ दिन में अंदर जाने लगा, बैठने लगा सच। इतना आकर्षित हो गया वो गौरांग महाप्रभु के डीटीज को पूजा करना देख के, गौरांग महाप्रभु का लाइक कीर्तन सुन के एंड ऑल दैट, वो हर रोज़ ये नियम बना दिया सच। वो हर रोज़ सुबह उठता था, मछली पकड़ता था, बेचता था, और आने के टाइम किधर चले जाता था, नरोत्तम दास बाबा जी के टेम्पल में चले जाता था। उधर बैठ के पूरा एक घंटों तरह वो उसके साथ बैठ के कीर्तन करता था सच। तो स्वाभाविक रूप में पेरेंट्स तो डर जाते, ये क्या है, साधु नहीं बनेगा तो क्या करेगा, शादी करेगा। तो उसको शादी करा दिया। तो शादी किया सच। बट ज़्यादा टाइम वंशीदास बाबा जी महाराज फैमिली लाइफ में नहीं रहा, वो और बढ़ते रहा उसका प्रेम, है ना। वो पूरा अपना घर परिवार छोड़ के सच वो बाबा जी वेश धारण करके सच वो नवद्वीप चले जाते हैं सच, है ना। अलग अलग जगह गया, फाइनली वो सेटल होते हैं सच नवद्वीप में सच, बंगाल में। तो बहुत लोग इसको देख के समझ नहीं पाता था सच, है ना। कुछ भौतिक लोग जैसा बिहेव ही नहीं करता था सच, है ना। तो बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको रिकॉग्नाइज करता था, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उसको बहुत रेस्पेक्ट देता था सच। तो वंशीदास बाबा जी महाराज को बोलते हैं सच, लाइक शिष्यों को बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती हमारे बहुत खड़क है सच नियम में, ऐसा रूल फॉलो करने का मतलब करने का सच, वेरी वेरी स्ट्रिक्ट इन फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। बट ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, वो वंशीदास बाबा जी महाराज को बहुत मानता था और बहुत सम्मान करता था सच। और उसका शिष्य लोगों को बोलते हैं दैट ये ऑर्डिनरी हमारे जैसा साधक नहीं है सच, ये सिद्ध पुरुष है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है हमारे जैसा। तो ऑलवेज उसका डिसाइपल्स को बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज दैट कभी भी मौका मिलेगा आप कैसे भी आप मदद करते रहिए वंशीदास बाबा जी महाराज का, और सेवा करते रहिए चुप चुप के। वो डायरेक्टली नहीं लेते, आप चुप चुप के घर के बाहर चावल रख के आ जाइए, कुछ फलाहार रख के आ जाइए, वो देखेगा तो नहीं लिएगा ऐसे, है ना। तो ऐसा कितना भी सेवा कर सकते हैं उतना सेवा करिए बाबा जी महाराज का। हर रोज़ उसका भक्त लोगों से ऐसे उसका उच्चिष्ट मंगाता था, है ना, सभी लोगों को बांटता था एंड ऑल। तो बहुत ही लाइक सम्मान करता था सच ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। और इवन वृंदावन दास ठाकुर भी बहुत सम्मान करता था भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को। तो उसको रिकॉग्नाइज कर लेता था। जगन्नाथ विमल आ गया, जगन्नाथ विमल आ गया। जगन्नाथ विमल मतलब जगन्नाथ का प्रसाद है, विमला देवी का प्रसाद है, ऐसे विमला प्रसाद है उसका नाम। तो वो बोलते हैं मंजरी आ गया, मंजरी आ गया, मंजरी आ गया, अभी इसके पीछे ज़रूर राधा रानी भी आएगा, राधा रानी भी आएगा, ऐसा करके। तो वो भी बहुत रेस्पेक्ट देता था ऐसे। तो हाँ, बट बाकी लोग कंफ्यूज हो जाता था उसका बिहेवियर से सच, है ना। वो और कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करता था, नहाता था नहीं है, फटा हुआ कपड़ा कोपिन पहनता था, है ना, दाढ़ी बढ़ाता था, कभी शेविंग नहीं करता था, बड़ा बड़ा नेल्स होता था, बड़ा बड़ा ये होता था, है ना। बहुत देखने के लिए भी बहुत डर लगता था लोगों को, इतना बड़ा बड़ा आंख एंड ऑल लाइक। तो समझ नहीं पाता था लोगों को वो क्या है सच। बट भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को मालूम है सच। तो प्रभुपाद बोलते हैं 2 टाइप ऑफ डिवोटीज होते हैं सच, गोष्ठानंदी और भजनानंदी, है ना। तो भजनानंदी मतलब वो किधर भी नहीं जाते, अपने घर में बैठते, अपना डीटीज, अपना सेवा, अपना भक्ति, अपना माला, वही प्रपंच है उसका, और कुछ लेना देना नहीं है किसी से। बट गोष्ठानंदी वो है, वो अपने आप उद्धार नहीं होना चाहते, वह सभी लोगों को उद्धार करना चाहते हैं सच, है ना। तो अपना सुख नहीं देखते, सभी को सुख देना चाहते हैं, सभी को भगवान की प्रेम देना चाहते हैं, वो गोष्ठानंदी है। हमारा परंपरा आते है गोष्ठानंदी परंपरा में,
प्रभुपाद जी का परंपरा क्या है? गोष्ठानंदी, भजनानंदी नहीं है। हम एक जगह बैठ के माला करके अपने आप को खुश रहना, वो परंपरा नहीं है हमारा। हम कितना भी हो सकते, हम कितना भी सीखा, यार देहो तारे का हो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु है तारे ये देश। तो कितना भी हो सकते उतना, कितना भी मालूम है वो हम प्रचार करना चाहिए सच। तो पूरा दिन रात उसका जीवन यही है। वंशीदास बाबा जी महाराज का अपना डीटीसी जीवन है सच। उसका 6 डीटीस है सच वंशीदास बाबा जी महाराज। एक है लड्डू गोपाल छोटा, और इसके बाद हाँ 6 इंच का राधा कृष्णा डीटीस है। गौर गदाधर मिलके एक है, गौर गदाधर और नित्यानंद 3, और इसके साथ राधा कृष्ण डीटीस और लड्डू गोपाल, टोटल 6 है ना। तो गौर निताई का डीटीस 3-3 फुट होता था, और राधा कृष्ण की डीटीस छोटा 6 इंच का होता था। देन लड्डू गोपाल एंड ऑल है सच। तो यही इसको सुबह इसका शेड्यूल ये है, सुबह उठ के चले जाता था जंगल में, अच्छा फूल तोड़ के लेके आना। वो फूल इतना मधुरमय, इतना सुगंधमय, इतना फूल ढूंढ के आते हैं, पूरा इतना समय लगाते हैं। सुबह 4 बजे जंगल चले जाता था भगवान को फूल लेके आने के लिए, ढूंढ के आता था 12 बजे दोपहर को। वो मग्न हो जाता था, अरे ये फूल लेगा तो भगवान को अच्छा लगेगा, ये फूल बहुत सुगंध है, वो फूल कल देखा वो किधर मिलेगा। पूरा घूमता था, इतना भाव में फूल कलेक्ट करता था और आता था। देन बैठ के बहुत ही प्रेम से भगवान की माला बनाता था। इसके बाद मधुकरी में जाता था, मधुकरी में जाके भगवान को भिक्षाटन में कितना भी दिया, देन वो लेके आता था, और उसको चावल लेके आता था। चावल को एक दाना धोता था सच, एक दाना इतना टाइम लगाता था भगवान की चावल धोने में सच। एक चीज़ केयरफुल्ली है ना, एक घंटा चावल ही धोता था। अरे ये इसमें कुछ ये नहीं है, ये ठीक है ये चावल की ये इसमें कुछ नहीं है ना। तो ऐसा लगा के सच रात को 9 बजे के बाद वो कुकिंग स्टार्ट होता था उसका। रात को 12 बजे भोग लगता था तब भगवान की भोग, अपना किया हुआ भोग के बिना वो कुछ नहीं खाता था। वैसा नहीं कि कोई भी कुछ भी दे दिया बना के, वो नहीं खाते। पहले वो अपना बनाने का, अपना डीटीज को लगाने का, तब पाता था ऐसे तो इसके बाद छोटा मोटा पा लेता था, कितना भी बनाया। देन पूरा रात दिन गौर कीर्तन करता था, बात करता था डीटीज से। अगेन सुबह 1-2 घंटे में अगेन उठ जाता था। ऐसा महान वक्त है ऐसे वंशीदास बाबा जी महाराज। बहुत प्रेम है, निकटमय प्रेम है ऐसे। कभी कभी सखा के रूप में डील करता था भगवान को, कभी कभी वात्सल्य रूप में डील करता था, कभी कभी बहुत प्लीडिंग वे में रिक्वेस्ट करता था, कभी कभी लाइक सखा के रूप में लाइक उसको डांटता था, कभी कभी प्रेम लाइक माधुर्य भाव से वो बहुत प्रेम करता था, विरह भाव प्रकट करता था। तो बहुत ही उच्च कोटि का वैष्णव है सच। एक गंगा जी के किनारे हैं, वो एक पेड़ के नीचे वो रहता था सच, है ना। बहुत ही हाईएस्ट लेवल ऑफ रेनंसिएशन वो दिखाता था सच सभी को सच। तो इसलिए सच इतना सम्मान करता था भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। पूरा रात उसका प्रिय भजन है नरोत्तम दास ठाकुर का, क्योंकि नरोत्तम दास बाबा जी नरोत्तम दास ठाकुर के परंपरा में वो शिक्षा लिया, छोटा उम्र से वही गाना गाया सुना एंड ऑल, तो वही गाता था, है ना। पूरा क्या क्या बुक्स लिखा चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम दास ठाकुर, दो बुक्स लिखा वैष्णव सॉन्ग्स में। हमारा वैष्णव सॉन्ग्स में भी मैक्सिमम उस 2 बुक्स से ही लिया गया है, एक प्रार्थना, एक प्रेम चंद्रिका, प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो ये 2 बुक्स पूरा कंठस्थ आ गया एज सच तुलसीदास बाबा जी महाराज। वो पूरा दिन रात गौरांग महाप्रभु का ये कीर्तन करता था। और ये बहुत ही कीर्तन पसंद है। निताय ये करना हवे, लाइक राधा कृष्ण पावे एंड ऑल, लाइक, है ना। निताय गौर का कृपा के बिना राधा कृष्ण को पाना असंभव है करके एक बहुत ही अच्छा सॉन्ग लिखा, वो बार बार गाता था सच। तो ये है सच। वो पूरा
उसका जीवन है ये डीटीज के सामने ही घूमता था एज सच, है, ऑलवेज बात करता था पर्सनल रूप में एज सच, है ना। भक्त लोगों को देखते कभी भी जाओ उसका घर, कुछ ना कुछ बात करता था, अगेन रुक जाता था, कुछ सुनता था, अगेन कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करता था एज सच। दैट मीन्स भगवान कुछ बोल रहे, सुन रहे, देन ये बोल रहे, भगवान बोल रहे, ऐसा ऐसा आदान प्रदान करता था लाइक हर रोज एज सच। डिवोटीज हैरान हो जाते क्यों इतना बात करते भगवान से एंड ऑल, बट उसका कुछ काम ही नहीं है एज सच, इधर गाना गाते या बात करते रहते वो डीटीज से एज सच। तो ऐसा कभी भी चाबी नहीं लगाता था घर को, ये बोलते थे ये तो निताई का घर है, गौर के घर है, उसका घर वो संभालने का, मैं क्या संभालेगा। तो हाँ वो चाहते तो वो संभालेगा ऐसे छंडोला। तो वो ऐसा ही छोड़ के चले जाता था, है ना। लाइक कभी कभी कोई भक्त लोग कुछ भी आके देता था, बहुत कुछ चीज़ वो आके देखता था, वो चोरी हो जाता था, है ना। तो वो कुछ नहीं बोलता था दैट एक चोर हमारा घर पे है, वो भी चोर है, ये भी चोर है, ठीक है, वो ये चोर दिया है, वो चोर लेके गया है, क्या फ़र्क पड़ेगा, दोनों चोर है ऐसे। तो ऐसा ही एक बार चोरी कर, एक बार ऐसा ही गंगा जी में नहाने के लिए गया, तो सुबह सुबह तो एक भक्त ने एक दो ब्रास कढ़ाई दिया, पॉट्स, है ना, उसमें ब्रास पॉट्स में एक ब्रास पॉट में गौरांग महाप्रभु को कुकिंग करता था, बड़ा में, छोटा में नित्यानंद प्रभु का कुकिंग करता था। ये वो दिन आया, वो देखा तो गायब हो गया ब्रास पॉट्स। देन चढ़ी लिया, निताय गौर बताओ अभी, लाइक मैं आपका घर आपके उम्मीद में सौंप के गया, अब आपका सामान संभाल नहीं पाया, क्या करेगा आप, बाकी लोगों को क्या उद्धार करेगा, है ना। तो वो बोलते दैट तब तक आपका अगेन आपका मटका लेके नहीं आएगा, तब तक आपको भोग नहीं बनेगा, आप भूखा मरेगा, कुछ भी करो, आपको भोग चाहिए तो उसको वापस लेके आओ। तो एक दिन हो गया ऐसा, वो भूखा रखा गौर निताई को, ये भी नहीं पा रहे, वो भी गौर निताई भी नहीं पा रहे। तो फाइनली निताई को बहुत भूख लग गया, तो वो ऐसा थप्पड़ मारा लाइक वो चोर को, वो तुरंत आके नेक्स्ट डे मॉर्निंग आके वो छोटा कटोरा लेके दे दिया, ये ले लो, मेरे को नहीं चाहिए आपको कटोरा करके। तो बहुत कुछ हो गया, हाँ ये छोटा कटोरा ये निताई का है। अभी निताई को गौर के सामने भोग लगाना स्टार्ट किया, देखो गौर आप नहीं लेके आ पाया, आप भूखा ही रहेगा, अभी ओनली मैं निताई को कुकिंग करके भेजेगा, भोग लगाएगा। तो इतना मधुर स्वादिष्ट उसको ये करने के लिए गौर को तो बहुत अच्छा तरह कुकिंग करता था, उसके सामने निताई को खिलाता था, और गौर को बोलता था आप क्यों रो रहे हैं, अच्छा आप लेके आओ आपका, तब आपको भी मिलेगा। देन गौर अगेन वो दूसरा चोर है ऐसे, दो चोर एक एक लेके चला गया, तो गौरांग महाप्रभु उसको भी एक थप्पड़ मार के उसको अगेन वापस भेजते हैं, अगेन वो बड़ा वाला मटका लेके आते हैं, देन गौरांग महाप्रभु को उसमें खिला के देन भेजते हैं। मैं वो अगेन रोते रोते बोलते थे मैं थोड़ी आपको भूखा रखना चाहते हैं, बट आपको सबक सिखाना चाहते हैं, आप आपका सामान नहीं रख पाएगा तो क्या करेगा सच, है ना। तो मैं आपकी जिम्मेदारी दिया आपको कुछ करने के लिए, आप करते नहीं तो क्या करूँ, मेरे को इच्छा थोड़ी है आपको ऐसा भूखा रखना। ये सब बहुत प्रेम से आदान प्रदान करता था सच, बहुत ही सच। एक बार ऐसा ही लाइक एक मछुआरी आया तो उसका गांव का, तो वो किसको क्या मालूम है, लाइक वो एक मछली दे दिया इसको, दिया तो लाइक उसका मन में ऐसा कुछ आया दैट, क्योंकि मछुआरे का फैमिली उसको अटैचमेंट होता है, मन में ऐसा आया दैट एक बार इसको चकूँ करके, बट इमीडिएटली इतना गुस्सा आया, उसको छड़ी लेके भगा दिया उसको, कितने हिम्मत थे आपको दैट मेरे को मछली दिया करके। बट इसके बाद अंदर आके रोने लगते, मेरे मन में ऐसा कैसे विचार आया, मेरे को कैसे मेरे मन में मछली खाने का विचार आया, लाइक गौर नेता के ऊपर देखा, आप क्या कर रहे हैं ऐसे, छड़ी लिया ऐसे, आप क्या कर रहे हैं, तो आपका जिम्मेदारी है, मैं पूर्ण शरणागत है, मेरे अंदर एक भी गलत विचार नहीं आने का जिम्मेदारी मेरा नहीं है, आपका है। तो अभी ऐसा गलत विचार क्यों आया, आपका दोष है ऐसे, अभी आपको सबक सिखाया करके उसको रस्सी बांधते ऐसे, गौर निताई को रस्सी बांध के लेके जाते और गंगा जी में फेंक देते, और वो रस्सी अपने पैर के नीचे पकड़ के रखते ऐसे और चिल्लाते हैं ऐसे। आपको इतना भी मालूम नहीं है आपका भक्त को प्रोटेक्ट करने के लिए,
अभी अभी झेलो कितना टाइम झेलने का। बट बाकी लोग ये क्या हो गया बाबा जी महाराज को, ये डीटीज को फेंक दिया सच गंगा जी में, क्या है ये सच। वो उसको बाबा जी महाराज को रुकाने का सोच रहे हैं सच, उसको डीटीज को जल्दी निकाला है सच, क्या पागल हो गए क्या है करके। देन उसको मारता था, कोई भी आएगा मारेगा मेरे को, बोले कि ये लोगों को सबक सिखाने की, ये कैसे मेरे मन में ऐसा गलत विचार लेके आए ये लोग करके तो ऐसा आधा घंटा 1 घंटा होने के बाद उसका गुस्सा शांत हुआ। देन ऊपर निकाला, देखा देखो अभी फाइनल वार्निंग दे रहे है ना, अभी तो लेके आ गया, मैं ऊपर उठा दिया, इस बार ऊपर नहीं उठाएगा एक और बार गलत विचार आया मेरे मन में, देख लीजिए आपका करके, ऐसा ऐसा आदान प्रदान करता था। अपना गौर निताई का डीटीज में एक बार सांप आते घर पे, सच सांप आते हैं सच, वो बहुत विशालु सांप है सच है ना, झोपड़ी में घुस जाते हैं सच, सभी लोग डर जाते हैं, ये इतना विशालु है, सभी लोग छड़ी लेके उसको मारने की कोशिश करते हैं। गौर वंशीदास बाबा जी महाराज बोलते रुको 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 रुको, ये शेषनाग आया, बलराम जी आया निताई गौर को मिलने के लिए। वो बोला दैट जाओ अनंत देव जाओ गौर निताई को मिल के आओ करके तो सभी के सामने वो नाग ऐसे आल्टर में जाता था, गया और उसको गौर निताई को थोड़ा उसके सामने थोड़ा टाइम रख के अगेन चले जाता था सच। तो ऐसा महान आचार्य है सच लाइक वंशीदास बाबा जी महाराज है सच। तो बहुत कुछ ऐसा लीलाएं हैं सच। तो हर बार भगवान को पुकारता था सच 2 नाम से, भक्त वत्सल हरि, प्राण वल्लभ हरि, है ना। वो घंटों घंटों तक चिल्लाता था, वो भक्त वत्सल हरि, वो प्राण वत्सल हरि, वो गौर, वो निताय, है ना, लाइक रक्षा करो, पाहि माम रक्ष माम करके सच। ऐसा ही बहुत कुछ चोरी हुआ है सच, लाइक कभी गोल्डन रिंग चोरी हो जाता था सच। देन अगेन कभी कभी बोलता था लाइक इतना वरी क्यों हो रहा है ऐसे, ठीक है ऐसे कोई भी चीज़ लाइक पैसा चले जाएगा तो इतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे लाइक कैसे बाल निकालते हैं, बाल निकालने के बाद बाल चला गया, कोई रोते थोड़ी है, थोड़ा टाइम के बाद लेकिन बाल आ जाते। ऐसा ही पैसा है, पैसा में भी आज आपका हाथ में नहीं है, भगवान ले लिया, बट भगवान चाहते तो आपको दे देगा ऐसे। उसके लिए रोना क्या है ना, कभी आते कभी जाते, कभी कोई चोरी कर लेते, उसके लिए आप ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए ऐसे सभी में ऐसे। तो ऐसा आदान प्रदान करता था ऐसे भगवान से ऐसे। एक बार ऐसा हुआ, बहुत बारिश आने लगा, इतना बारिश आने लगा, गौर निताई के ऊपर पूरा बारिश ये गिरने लगा आल्टर के ऊपर। और वो तो एनीवे सूख रहे हैं ऐसे, वो तो एनीवे लाइक बारिश में डूब रहे हैं ऐसे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अभी देखा ये बारिश छत के ऊपर से गौर निताई के डीटीज की तरह उसके ऊपर गिर रहे हैं ऐसे। देन अगेन लाइक छड़ी उठाया ऐसे एक और निताई डर गए, अभी हम क्या किया करके। इस बार वो बाहर गया, वो छड़ी दिखाया, ए इंद्र मैं आपको वार्निंग दे रहे अभी ऐसे, इमीडिएटली आपका बारिश मेरा गौर निताई को गड़बड़ कर रहा है, वो उसको नाला है उसको गीला कर रहे हैं ऐसे, मैं आदेश दे रहे अभी ये बारिश रुक जाओ रुक जाने के लिए। तो अभी आप बारिश नहीं रुकेगा, मैं क्या करेंगे गौर निताई को गंगा जी में फेंक देगा, और गौर निताई गंगा जी का फेंकने का कारण आप होगा, आप पाप भोगेगा। तो इमीडिएटली इंद्र जी बारिश रुका दिया सभी लोकल लोग अंडोल हैरान हो गए, क्या भक्त है ऐसे, क्या आदान प्रदान करते हैं भगवान से, क्या बात करते हैं अंडोल ऐसे। ऐसा बहुत दिव्य पास टाइम्स है ऐसे। कभी पूरी जाता था ऐसे, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा में ऐसा भी इंसिडेंट्स हुआ, वो एक साइड खड़ा हुआ जगन्नाथ जी का रथ, बाबा जी किधर खड़ा हो गया उधर रुक गया ऐसे। तो कितना भी कोशिश किया रथ आगे नहीं गया। देन बाबा जी महाराज आगे आके कुछ वार्तालाप किया थोड़ा टाइम के लिए जगन्नाथ जी से, और किसी को पता नहीं क्या बोल रहे क्या सुन रहे एंड ऑल। इसके बाद बाबा जी महाराज बोला अभी चलो, देन रथ निकलना स्टार्ट हुआ ऐसे।
ऐसा ही एक बार पुरी में अपना लड्डू गोपाल को लेके गया बीच में नहाने के लिए। तो वो वो बोला दैट समुद्र के पास नहीं गया, और समुद्र इधर आओ मेरा लड्डू गोपाल को नहलाओ। सभी के सामने समुद्र उछल के ऐसे बाबा जी महाराज के पास आ गया और लड्डू गोपाल को नहला लिया ऐसे। ऐसा ऐसा सिद्ध भक्त है ऐसे, कुछ भी है ऐसे भगवान से ऐसे वो सब कुछ मालूम होता है ऐसे क्या क्या होने वाला है ऐसे। एक दिन में कोई झोपड़ी में मत रहो, मेरा घर है दैट एक गंगा के तट पर ही एक्चुअली एक 3 फ्लोर की छोटा कुटिया छोटा घर है। तो बाबा जी महाराज को बोला आप इधर रहो करके। बाबा जी महाराज बोला ठीक है, वो रह जाते करके। उस टाइम बुढ़ापा आ गया, थोड़ा ओल्ड एज हो गया, तो ग्राउंड फ्लोर में ही रहता था। तो उस दिन मॉर्निंग उसका सेवक को बुलाया और बोला दैट जल्दी पूरा सामान शिफ्ट करो फर्स्ट फ्लोर को ऐसे। तो मेरे को भी फर्स्ट फ्लोर लेके जाओ। उसको समझ में नहीं आया, अभी कभी ग्राउंड फ्लोर में रहता था, फर्स्ट फ्लोर में क्यों बोल रहे हैं सच। तो इमीडिएटली वो बोलने के बाद 1 घंटे में बाढ़ आने लगा, पूरा ग्राउंड फ्लोर डूब गया सच। तो बाबा जी महाराज को पहले ही मालूम है सच क्या होने वाला है सच। तो वो सिद्धि है उसके पास। एक बार लाइक बहुत ही बीमार व्यक्ति है ऐसे, लाइक कलरा ऐसा कुछ है सच। भगवान वो सोचते हैं दैट बाबा जी के कृपा से कुछ होगा करके। तो उसके घर के बाहर लाइट के बहुत कृपा याचना करते हैं, मेरे को ठीक करो। कितना भी कोशिश किया ठीक नहीं हुआ एंड 1 दिन 2 दिन बाबा जी कुछ माइंड नहीं करते हैं सच। बट तीसरा दिन 14 दिन उसको कंडीशन दे के कृपा आते हैं, देन बाबा जी उसका आँख खोल के तुलसी डालते, इमीडिएटली सभी के सामने वो ठीक हो जाते हैं। वो चलने लगता है सच। ऐसा ही है। लेकिन एक बार बोट में जा रहे बाबा जी महाराज, अलग अलग पास टाइम से सच। तो इमीडिएटली बोला दैट एक बार रुको दैट ये छोटा तट है ना, ये एक आइलैंड है, तो इधर रुको। मेरे ख्याल से मैं अनंत शेष का दर्शन करना चाहता है सच इधर। वो बोलता है अनंत शेष दर्शन क्या करेगा ये करके। तो बोट वाला ठीक है बाबा जी बोल रहे थे, तो उधर गया निकला। देन इमीडिएटली एक येलो कलर की एक बहुत बड़ा सांप बाबा जी महाराज के सामने आया। दर्शन किया, हाँ देखा अनंत शेष आया। मैं बोला ना अनंत शेष को दर्शन करने के लिए करके। देन बोला आप चले जाओ अनंत शेष, मैं जाने का मेरा करके। देन वो बोट में बैठ के वो चले जाता था सच। तो ऐसा लाइक अलग अलग पास टाइम्स लिखा गया है सच भगवान के। सच एक बार बाल गोपाल को ये भोग बनाया सच, स्वीट राइस बनाया सच। रात को स्वीट राइस बनाया और लाइक भोग चढ़ाने वाला है। अचानक क्या हुआ पता नहीं, इतना गुस्सा आ गया, वो पूरा भोग लेके फेंक के चला गया सच। आपको खिलाने की क्या ज़रूरत है सर। तो अगेन चिल्लाने लगा सभी के सामने, आपको लाइक गुड़ है ना, लाइक वो क्या है पाम ट्री से गुड़ आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खजूर का गुड़ बना हुआ खीर आप राधा गोविंद मंदिर में वृंदावन में जाके पा लिया, और मेरा स्वीट राइस कौन पाएगा सच करके। तो सभी लोग हैरान हो गए, ये गोपाल जी क्या है, उधर कब गया, उधर ये खजूर का गुड़ से खीर कौन पाया एंड ऑल। देन एक सर्वेंट है उसका, तो वो लेटर भेजते हैं ऐसे वृंदावन, आपका राधा गोविंद में ये दिन में ये शाम को क्या भोग बना, गुड़ का खीर बना क्या करके। वो रिप्लाई आते, हाँ उस समय हमारा आपको कैसे पता है करके। नहीं हमारे बाबा जी महाराज कुछ लीला किया इधर। तो ऐसा दिव्य है सच है ना, अलग अलग लोगों को लाइक सो यही है सच। ऑलवेज लाइक बहुत कुछ ऐसा पास टाइम्स हुआ, आप पढ़ सकते हैं सच। हमारा हिज होलीनेस भक्त विकास स्वामी महाराज एक बुक लिखा ओमसीदास बाबा जी के बारे में सच, आप उस बुक को पढ़ सकते हैं सच है ना। तो वो त्रिकाल ज्ञानी है सच, सिद्ध पुरुष है सच। वो हमारा तरह भक्ति नहीं है और का, वो डायरेक्ट भगवान से वो आदान प्रदान करता था सच। सो एक बार बहुत बूढ़ा हो जाते हैं सच, उसमें लिखते हैं, लेकिन एक बार बूढ़ा हो जाते तो
वो मधुकरी में जा नहीं पाते ऐसे, बहुत बहुत बूढ़ा हो जाते, चल नहीं पाते, बेड में रहते ऐसे। तो उसका देन उसका सर्वेंट को बोलते दैट सुना आप गौरांग क्या बोल रहे मेरे को। तो गौरांग ये बोल रहे दैट अभी आप बूढ़ा हो गया, आप अभी मधुकरी नहीं कर पाएगा, मैं आपके तरफ मैं जाके मधुकरी जाके आपको खिलाना चाहते हैं ऐसे करके। देन अगेन छड़ी उठाया, ए गौरांग खबरदार ऐसे, मैं कब तक जिंदा हुआ, मैं आपको मदगरी करके मैं कुकिंग करके आपको खिलाएगा, आप मेरे को खिलाने का मत सोचो, आपका फेर मैं तोड़ेगा ऐसे करके। तो ऐसा बात करते थे भगवान से ऐसे। सो तो ऑलवेज कोई भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा कुछ है तो बताओ करके बोलेगा तो ऑलवेज वंशीदास बाबा जी महाराज वो बोलते दैट है ना, जीवे देया नाम रुचि वैष्णव सेवना, यही छड़ी धर्म नहीं सुनो सनातन। लाइक ये श्लोक बोलता था ऐसे है ना। कभी भी आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या है? जीवे दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा। और ये भी बोलता था कोई भी वैष्णव को अपराध करेगा वो सभी उसका जीवन में कितना भी है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा ऐसे। तो एटलीस्ट ये तीनों फॉलो करो और वैष्णव अपराध से बचो ऐसे, आपको भगवान मिलेगा ऐसे। जीवे दया नाम रुचि वैष्णव सेवा। तो एक बंदा बाबा जी महाराज से पूछते हैं दैट मैं भगवान को देखना चाहते हैं, बाबा जी महाराज बताओ दैट भगवान को कैसे देखूं मैं। तो बाबा जी महाराज वो बोलते दैट आप माला कर रहे हैं सच। हाँ माला तो करते हर रोज़। बाबा जी महाराज बोलते हैं आप माला तो कर रहे हैं बट आप नहीं चाहते भगवान आपको मिले करके सच। आप तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 करे वो तो उच्चारण कर रहे, बट अभी आके भगवान बोलेगा आपके सामने दैट अभी आ जाओ मेरे साथ, मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ। तो आप क्या बोलेगा? मेरे को बहुत कुछ काम है अभी, थोड़ा बिज़नेस सेटअप करने का, बेटा बेटी का शादी करने का है ना, कुछ बिल्डिंग बनाने का, मैं अभी नहीं जा सकते है सच। तो देन क्यों कृष्ण को पुकार रहे हैं सच? तो ये तो आपका उद्देश्य ये है कि दैट मैं सुखी हो जाऊं, मैं थोड़ा पैसा आ जाए मेरे को, मैं कुछ बिज़नेस अच्छा हो, मेरा कष्ट चले जाए है ना। तो उस भाव से आप हरे कृष्णा या नाम ले रहे, इसलिए भगवान नहीं मिल रहे आपको ऐसे है ना। तो बाबा जी महाराज एक एग्जाम्पल देते हैं ऐसे। कभी छोटा बच्चा है ऐसे, एक पति को ऐसे जल्दी ऑफिस जाना चाहिए बट बहुत छोटा दो बच्चा है। तो वो क्या करते हैं माता, वो बच्चा को एंगेज करने के लिए कुछ टॉयज़ दे देते हैं ऐसे। ठीक है आप थोड़ा टॉयज़ से खेलते रहो, मैं पिताजी को थोड़ा भोग लगाएगा, थोड़ा मैं मेरा काम में रहते, तो अपना आप भी मस्त और मैं भी मस्त ऐसे। तो ऐसे ही ऐसे गौर किशोर दास बाबा जी मोहर है दैट भगवान भी बहुत कुछ टॉयज़ दिया है हमको है ना, माता के रूप में, वाइफ के रूप में, हस्बैंड के रूप में, चिल्ड्रन के रूप में, बिल्डिंग्स के रूप में, कंप्यूटर के रूप में, आईफोन के रूप में, ये सभी एसेट्स। इफ़ वी आर अब्जॉर्व्ड इन दोज टॉयज़, आप अपना मति इसी में रखे रहा है एसेट्स, और भगवान को नहीं, आपका मति नहीं दे रहे तो भगवान क्यों चाहते हैं आपको? तो भगवान अपना काम में, अपना लीला में मस्त रहेगा। तो आप रियली भगवान को चाहते हैं पाने के लिए एक चीज़ करना पड़ेगा, वो है रोना। यू हैव टू वीप। रोना तब आएगा, बाबा जी महाराज बोल रहे रोना तब आएगा तब आप रियली ज़रूरत है ऐसे।
आपको आपको चाहिए भगवान ऐसे, और कुछ नहीं चाहिए भगवान, मेरे को आप ही चाहिए ऐसे, है ना। लाइक माता कब आएगा, प्रभुपाद जी बोलते माता तभी आएगा तब बच्चा हृदयपूर्वक पुकारते माँ को, नहीं तो माता जी को पता चल जाएगा ये नाटंकी का रोना है, मैं जाने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा करने दो। बट बच्चा रियली भूख लगता है, रियली माँ के लिए इतना हृदय से पुकारते हैं, इतना पुकारते हैं, जब माँ कैसे भाग भाग के आते हैं। ऐसा कभी हम माला किया भगवान के लिए, सच भगवान के पास जाने के लिए, टाइम पास करने के लिए माला करते तो भगवान कैसे देख सकते, कैसे पुकार सकते। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते लाइक माला कैसे करना चाहिए, एक छोटा बच्चा अपना माता को कैसे रोते हुए पुकारते हैं, है ना। इस दिस चांटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र इज जस्ट लाइक ए लाउड क्राइंग ऑफ ए चाइल्ड फॉर हिज मदर्स अटेंशन, है ना। लाइक दैट हम कभी भी उस स्टेज में आएगा, उस स्टेज में आके भगवान को रोते रोते भगवान ही चाहिए मेरे को, ये धन संपत्ति परिवार कोई कुछ सुख कुछ भी नहीं चाहिए, ये आप मेरे को आप चाहिए भगवान, आप चाहिए, आपके बिना मेरे को कुछ गति नहीं है, आप ही सर्वस्व, मेरे को आप चाहिए। उस भावना से हम रोएगा भगवान से ऐसे। बाबा जी महाराज बोल रहे भगवान आएगा आपके सामने। तो इस एक शब्द वीप, रोना में इतना गुह्य अर्थ है दैट बाबा जी महाराज समझाते हैं लाइक अपना शिष्य लोगों को ऐसे। तो वो रोना तब आएगा तब हम शुद्ध भक्त के संग में हम भक्ति करेगा, उसके मार्ग अनुसार हम भक्ति करेगा, ऐसे उसको सेवा करेगा, देन हमारे अंदर ये हृदय में वो भाव प्रकट होगा ऐसे। शुद्ध भक्ति कृष्ण प्रेम साध्य कबू नहीं, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय। अभी हमारा मन मलिन है ऐसे, भगवान के प्रति प्रेम है बट अभी वो ढक गया ऐसे, है ना, अलग अलग मलिनता से ऐसे, काम क्रोध लोभ मोह मात्सर्य ढक लिया उस प्रेम को। अभी क्या करना चाहिए, वो शुद्ध करना चाहिए, वो शुद्ध करके वो पर्दा हटाना चाहिए और भगवान को पूरा मन से भाव से पुकारना चाहिए, तब ऐसे भगवान हमारे पास आएगा, ऐसे हमको दर्शन दिएगा ऐसे। सो अब नवद्वीप जाएगा ऐसे। अभी भी वो जगह है किधर गौर किशोर दास बाबा वंशीदास बाबा जी महाराज का घर है ऐसे, कोलाद्वीप। कोलाद्वीप में उसके घर में अभी भी वो 2 ब्रास पॉट्स है, किसने चोरी किया है ऐसे, वो भी दर्शन कर सकते हैं। उसका 6 डीटीज है, गौर निताय, गौर गदाधर, निताय, लड्डू गोपाल और राधा कृष्णा, वो डीटीज को भी हम दर्शन कर सकते हैं उस जगह कभी जाएगा तो ऐसा महान आचार्य वंशीदास बाबा जी महाराज है, उसको कृपा याचना चाहिए ऐसे। हम भी भाव से ऐसे, हमको भी वो फीलिंग्स दे, वो अनुभव दे ऐसे। हम अनुकरण नहीं करना चाहिए ये लोगों को, बट अनुसरण करना चाहिए। वी शुड नॉट इमिटेट बट फॉलो व्हाट दे आर टेलिंग, फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस एज सच, तो देन वी कैन प्रोग्रेस इन भक्ति एज सच। तो इसलिए एज सच भक्त सिद्धांत सरस्वती बाबा जी महाराज, इवन दो हमारा डायरेक्ट हमारा शिक्षा परंपरा में नहीं है, फिर भी भक्त सिद्धांत सरस्वती महाराज बहुत मानता था ऐसे वंशीदास बाबा जी महाराज को और उसको सेवा करने के लिए बोलता था। तो ये है महान आचार्य लोगों की, थोड़ा थोड़ा मैं कुछ पढ़ा वो आपको समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हरे कृष्णा। श्री वंशीदास बाबा जी महाराज तिरुभाव दिवस की जय। श्री रघुनंदन दास ठाकुर तिरुभाव दिवस की जय। श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि भो। हरे कृष्णा। आज प्रभु जी ने बहुत अच्छा बोला, तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। हमारा कुछ नहीं है, हम क्या सुना पड़ा वही बताते हैं हमको। हमारा वी आर जस्ट लाइक ए पोस्ट में, सब कुछ क्रेडिट गुरु परंपरा को है। हरे कृष्ण।